بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی پریس بریفنگ میں ہمارے سارے میڈیا کے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے فلڈ ایمرجنسی کنٹرول روم کو راؤنڈ دا کلاک آپ نے کور کیا ہے اور اپنا وقت آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے ایز اے سندھی. اور جو اس کنٹرول روم کی اسٹیبلشمنٹ کی جو وجوہات ہیں اور ریسنٹلی ہمارے جو صوبائی وزراء ڈی جی پی ڈی ایم اے اریگیشن کے جو آفیسرز ہیں ہم کو بریف کرتے آ رہے ہیں, میں اسی کے تسلسل میں آج ادھر آیا ہوں. جو پی ڈی ایم اے کی ویب سائٹ ہے اس میں جو ڈیٹا ہم یہاں دیکھ سک رہے ہیں, جو ایکسیس کر رہے ہیں, وہ پبلکلی جو ہماری سندھ کی عوام ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. ان نے ایک انٹیگریٹڈ ڈیش بورڈ قائم کیا ہے جس میں ریلیف کیمپس کی جو پوزیشننگ ہے, اس کی جو آکیوپنسی ہے, جو لائف سٹاک کی کیمپس ہیں, میڈیکل کیمپس ہیں, اور اس کے علاوہ جو پوری ہماری تیاری موومنٹ ہو رہی ہے بندوں کے ساتھ لیفٹ بینک پہ رائٹ بینک پہ, ایک انٹیگریٹڈ ڈیش بورڈ ہے جو پی ڈی ایم اے کا موجود ہے. کل آپ کو بھی یقیناً آپ کی سیل فونز پہ ہماری طرف پی ڈی ایم اے کی طرف سے ایک ٹیکسٹ میسج بھی ریسیو ہوا ہوگا جس کو ہم نے ایمرجنسی میں یہ فیصلہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ نے, تاکہ ہمارے ہیلپ لائنز اور نمبرز پوری سندھ کی عوام کے لیے موجود ہوں تاکہ کنٹرول رومز کی ان کا ایکسیس ہو سکے. ابھی جو ہمارے پی ڈی ایم اے کی جو ایمرجنسی کنٹرول روم ہے وہ 24 آور ایکٹیو ہے. ہماری 440 ریلیف کیمپس ہیں جو اسٹیبلش کی گئی ہیں لاسٹ 24 گھنٹوں میں, اور اب ان کے نمبرز ہو گئے ہیں 528. اس کے علاوہ ہمارے ویئر ہاؤسز ہیں پی ڈی ایم اے کے سکھر میں, جامشور اور کراچی میں, جہاں ہمارے پاس اس فلڈ کو الحمدللہ, ایک تو دعا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو, پر اس فلڈ کو فیس کرنے کے لیے ہمارے سٹاکس کمپلیٹلی ہمارے پاس پی ڈی ایم اے میں موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دریا کا بہاؤ بڑھتا ہے تو ہمارے کچے کے لوگ کو اٹھنا پڑتا ہے, کاشتکاری کا نظام ختم ہو جاتا ہے. پر کیونکہ اس دفعہ بہاؤ تھوڑا یوزلی جو ہمارا ایک بینچ مارک ہے اس سے بڑا ہے, تو لاسٹ 24 آورز میں 28,000 لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں کچے سے. اب وہ ایک فگر ہو گیا پورا 95,000 کے قریب, جو کہ کچھ جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں وہ ہمارے کیمپس میں رہ رہے ہیں, کچھ نے اپنا بندوبست خود کیا ہے, کچھ بندوں پہ ہی رہ رہے ہیں. 150 میڈیکل کیمپس موبائل اور فکسڈ, آپ نے ہیلتھ کے یونٹس دیکھے ہوں گے پی ڈی ایم اے کے جو کمشنرز کو حوالے کی گئے ہیں. 150 میڈیکل کیمپس ہیں جو ٹریٹ کر چکی ہیں 21,000 پیشنٹس کو. اس کے علاوہ فلڈ کی سچویشن کے علاوہ ویسے بھی ایک پروویژن ہے جو ہماری 109 ہماری لائف سٹاک کی کیمپس ہیں, جس میں 6 لائف سٹاک رپورٹ ہوا ہے کیونکہ لوگ اپنے لائف سٹاک جتنا جمع کرائیں گے تو ٹریٹمنٹ اس حوالے سے ہوتی ہے. ہماری جو بوٹس ہیں پی ڈی ایم اے کی وہ ہیں 192 جو آؤٹ بورڈ موٹر ہے ہماری. ہمارے ساتھ پاکستان نیوی, رینجرز سب کا تعاون ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری ڈی ڈی ایم ایز ہیں, جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, وہ پی ڈی ایم اے کے فنکشنریز ہیں ڈسٹرکٹس میں, ان کا جو بھی اسٹاک کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ دن میں 3 یا 4 دفعہ ہمیں جو ریکویسٹ آتی ہیں وہ پرسنلی ہم اپروو کرتے ہیں اور اس اسٹاک کو ہم نے پورا کیا ہوا ہے. ابھی اس ٹائم جو ہمارا جو 5, 6, 7 سپٹمبر تک ہمیں بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے اور ہم ویجیلنٹ ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب سے دورہ کر کے آئیں گے سکھر پہ, اور لیڈرشپ سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. ہماری بیوروکریسی 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں موجود ہے. صوبائی وزراء کندھے سے کندھا ملا کے سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا. خدا نہ خواستہ کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ہم پوری طریقے سے تیار ہیں فیس کرنے کے لیے. اب آپ کے کوئی سوالات ہو تو ہم لے لیں گے. سر ایک بات بتائیں, مقدوم صاحب, جو آج کی صورت حال ہے, شروع میں تو خطرہ تھا, لیکن جس طرح پانی کا فلو کم ہوتا جا رہا ہے, پنجت پہ فلو کم ہے, ریمو پہ کم ہے, گڈو بیراج پہ کم ہے, تو یہ عوام کو خوف سے تو ذرا نکالے نا کہ یہ سیلاب کا خطرہ ٹل رہا ہے, یعنی سپر فلڈ کا خطرہ ٹل رہا ہے.
देखिए, हम जो कैटेगराइज करते हैं सुपर फ्लड को, तो वो जब 7.5 9 लाख जब 9 लाख से वो उस तक पहुंचता है या 9 लाख से इंक्रीज़ करता है तो हम उसको सुपर फ्लड का कैटेगरी असाइन करते हैं। इस टाइम हमने उसको रिड्यूस करके हाई फ्लड, वेरी हाई फ्लड का हमने उसको कैटेगरी दी है। मैं आपकी बात से जो अब आवाम की पल्स है कि हम जो एक्टिविटी है, या जैसे हम आज बैठे हैं, फ्लड कंट्रोल रूम बन गए हैं, कंट्रोल इमरजेंसी की सिचुएशन हमने की है, वो सिर्फ ये है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। फिर खुदा न खास्ता डिज़ास्टर्स होते हैं, कुदरती आफात हैं, अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनती है तो आवाम को आगाही होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो फिर गवर्नमेंट पे ब्लेम आता है। तो हमें अल्लाह से उम्मीद है कि वी विल नॉट फेस एनी कैटास्ट्रोफी, बट इफ़ इन केस देयर इज़ अ सर्ज और स्पाइक, तो हम इंशाल्लाह ताला हैंड्स ऑन इसको लेंगे। अच्छा, सवाल ये है कि ने अभी रिसेंटली सैलाब है सिंध में, उसको मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है। तो अब ये मिसमैनेजमेंट है जिसको दूसरे माशरों में जो है वो मिसमैनेजमेंट समझा जाता है, हमारे यहाँ उसको जो कुदरती आफत के तौर पर उसको ट्रीट किया जाता है। आखिर ये पानी का निज़ाम ठीक क्यों नहीं होता हमारे यहाँ? कितना टाइम लगेगा कि ये आए दिन सैलाब जो है उसको, उसकी वजह से लोग इतने मुतासर होते हैं, तबाहियाँ आती हैं, तो उसको पानी का निज़ाम जो है ये आखिर क्यों सही नहीं हो रहा? देखिए, लीडर वो अपोजिशन का काम है मुखालफत करना, तो वो तो मुखालफत बराए मुखालफत करेंगे और करते रहेंगे। हमें खिदमत करनी है, हम करते रहेंगे। और ये तो फैसला सिंध की आवाम करती है, हमें वोट दे के, और वो कि 2/3 मेजॉरिटी में हम बार बार आते हैं। जो आपने वाटर सिस्टम की बात की है, उसमें देखें, ये एक इन्वायरमेंटल चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 2010 में बात की थी, जब ये चीज़ लोगों के सर से गुजर जाती थी कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज क्या होती है, ये लोगों को पता नहीं था। उस टाइम प्रेसिडेंट साहब ने ये बात शुरू की, वो इंटरनेशनल फोरम्स पे गए, डेवोस गए, और जगहों पे गए, एंड एज अ वर्ल्ड लीडर उन्होंने ये बात, आज हम उसके असरात भुगत रहे हैं। और ये जो वाटर सिस्टम्स हमारे हैं वो 1932 में, अब मसलन जो हमारे जैसे सखर बराज है, तो आई बिलीव उसकी जो क्रिएशन हुई होगी वो 1930s में हुई होगी, 1925 में हुई होगी। उसके जो 32 में 23 में स्टार्ट हुआ था सर, 32 में कंप्लीट हुआ था सर। इसके जो 6 कनाल थे उनकी कंप्लीशन जो हमने पढ़ा है बचपन में, 32 में हुई। तो नाउ वी आर इन 2025, पर हमें इतनी फिर भी वो साख्त और बर्दाश्त है कि हम ये क्योंकि मीडिया से जो भी है सच हमें बताने की हमारी आदत है। हम 900,000 से प्लस 1 मिलियन तक हम पानी अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजार सकते हैं। तो हमारे अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, इसमें रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, बट अभी तक जो हमारा वाटर सिस्टम है, हमारे कनाल्स हैं, हमारे बराजेस की जो सिचुएशन है, उनकी गेट्स की, वो तसल्ली बख्श है। अच्छा सर, ये बता दें कि यकीनन अरबों रुपए रिलीज होते हैं क्योंकि बहाली का बड़ा काम है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की चांदी लग जाती है। निचली सतह पे डीसी, एससी, मुख्तियारकार वगैरह, वो तो माल बटोरते हैं ज़्यादातर। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे माजी में भी आ चुकी हैं। तो पीडीए में किस तरह उनको चेक करता है, कोई कैजुअल दौरे आपके, कोई किस तरह से इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? दूसरा, आपने कहा 28,000 से 95,000 की तादाद पहुँच चुकी है लोगों की, तो 95,000 में आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने लोग? देखें, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बजट है, इस टाइम हमने उसी को, जो हमारे बजट बुक में जो रिफ्लेक्टेड बजट है, उसी के विंडो के अंदर रह के जो हम अपनी ये पूरी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि फ्लड नहीं आएगी, तो हम जो हमारे 1 बिलियन की एलोकेशन है, हम उसी के अंदर ही बैठ के ये सारा करेंगे। ना इमरजेंसी हम चाहते हैं क्लॉजेस हम लेके आएँ, ना हम चाहते हैं कोई आउट ऑफ बजट हम चीज़ें लेके आएँ, पर अगर ज़रूरत पेश आती है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक्ट करती है। और मैं इस पर चाहूँगा, क्योंकि अब एक ब्यूरोक्रेसी की बात भी आपने की, तो वेरी सीनियर ऑफिसर सलमान शाह साहब को जानते भी, मैं चाहता हूँ ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें ज़रूर दें। देखें, ये जो इस टाइप के इश्यूज़ होते हैं, उसी को कर्टेल करने के लिए मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर, जैसे ही उन्होंने हमारी मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया, तो उनका पहला कंसर्न ये था कि हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी के बहुत से इश्यूज़ हाईलाइट होते हैं। तो हमने वॉर फुटिंग बेसिस पे एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाया है, जिसमें एक एप्लीकेशन बनाई है कि वो डाउन टू दी बंदा इंडिविजुअल जाके, अभी आप खोलेंगे हमारी वेबसाइट पे तो वहाँ सर्च करें कि क्या उसके नाम पे कोई शनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा, उसको पता चल जाएगा कि कोई चीज़ इशू हुई है कि नहीं हुई। ये ट्रांसपेरेंसी को हम इस हद तक यकीनी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में ओवरऑल है, जो कि आपने फैक्टर्स बताए वो जनरली प्रिवेल करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हों। मैं उसको नलीफाई नहीं कर रहा। हमारा काम है बीइंग अपर बॉडी उसको इंश्योर करें कि जो हमारे पार्ट पे जो चीज़ जा रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके। तमाम मामला तमाम ये इक़दामात सिंध हुकूमत अपने अखराजात से कर रही है या इसमें कोई इंटरनेशनल डोनर एजेंसी भी आपके साथ है? आप देंगे। देखिए जी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो सिचुएशन है ना, मैं आपको बताऊं 2022 का जो फ्लड था ना, वो एक सुपर फ्लड वाली कैटेगरी से भी बड़ा था। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो रेनफॉल हुआ था, और इस वक्त अब जो सुपर फ्लड 2010 वाला हुआ था वो हुआ था दरियाई, और वहाँ पे ब्रीचेज़ हुए थे। जो हमने हमारी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होती है वो उसके लिए हमने जो एस्टीमेट किया था वो 63,000 फैमिलीज़ का हमने जो उसके लिए रिलीफ पैकेज की ज़रूरत होती है वो हम शुरू से लेके अपने पास स्टॉक्स रखते हैं। 2022 में जब ये फ्लड आया तो 2020 में तो हमने उसको बढ़ा के 84,000 पे ले गए। 2022 हम 83,000 फैमिलीज़ को फेस करने के लिए, उनको कोई भी डिज़ास्टर आता तो उसके लिए तैयार थे। लेकिन फिर हमने देखा कि जब हमने 2022 का फ्लड एक्सपीरियंस किया तो हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था ना वो इसी चीज़ की अवेलेबिलिटी का था। अब इस पर भी आपने बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। आपने डिसाइड करना है कि आप कितने, अभी मैं उस वक्त 21 लाख घर तबाह हुए थे, अब 21 लाख फैमिलीज मूवी थी। कोई गवर्नमेंट, कोई मैं कहता हूँ सुपर पावर भी इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि 21 लाख फैमिलीज़ के लिए वो टेंट्स लेके रख ले। उसके लिए कॉन्टीजेंसी प्लान ये होता है कि आप एक मिनिमम थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं, उस थ्रेशोल्ड के हिसाब से आप चलते हैं। अभी हमने अपने थ्रेशोल्ड को बढ़ा के 2022 के बाद सिंध गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर साहब, इनकी हिदायत ये थी कि हम इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाएं। वो थ्रेशोल्ड को बढ़ा के हम इस वक्त हमारे पास 3 लाख फैमिलीज़ के लिए फिर भी कैपेसिटी है। और आई एम श्योर हो सकता है किसी और सूबे में भी हो या इंडिया में भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में सिंध की ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है कि किसी डिज़ास्टर को फेस करने के लिए जो इमीडिएट जो होता है वो होता है। मैंने मिनिस्टर साहब को ये कहा था कि सर ये हमारे पास स्टॉक्स में मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट्स के पास कम है। तो जैसे ये सिचुएशन डेवलप हुई हमने ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी नॉर्थ से स्टार्ट करके हमने डिस्पोजल पे रख दिया डिप्टी कमिश्नर के 2000 फैमिलीज़ के लिए इनिशियल ब्लड फेस करने के लिए। अभी तक एक टेंट भी इशू नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस हैं। एक टेंट, कोई राशन बैग, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसके हिसाब से चलेंगे, और उसमें ट्रांसपेरेंसी को हम 100% इंश्योर करेंगे कि जो कंप्लेंट्स पास्ट में होती रही हैं वो दोबारा ना हो। उसमें हो जाएंगी कुछ कमियां कोताहियां, लेकिन हमारा अटमोस्ट ट्राई यही है। आपने जो डोनर्स की बात की जी सर, तो हमने अपने इंटरनेशनल जो भी हमारे वर्किंग पार्टनर्स हैं, मोस्टली हमारे यूएन के और इसके अलावा भी, तो हमने इस सिचुएशन से उनको आगाह रखा हुआ है। पर इस टाइम मैं इस बात को क्लियर करता चलूँ कि जो भी सिंध इस फ्लड की तैयारी है या हम अपने सिंध के अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ये सिंध गवर्नमेंट की अपनी ज़ाती बजट और सिंध गवर्नमेंट की अपनी ज़ाती कंट्रीब्यूशन से है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी इन फ्यूचर तो वी विल रीच आउट टू आवर इंटरनेशनल पार्टनर्स। आज मैं हमारी फेवल अलविदाई मुलाकात मैंने की टर्किश काउंसिल जनरल से, तो आज वो जिक्र कर रहे थे, ये थोड़ा सा हटके बात है, आज वो जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान, टर्की और पाकिस्तान की जो ताल्लुकात उनकी बात हो रही थी, जो उनके पास भी डिज़ास्टर्स आए, तो जहाँ जहाँ हमारे इंटरनेशनल मुल्कों ने मदद की, पाकिस्तान ने भी वहाँ जाके और मुल्कों की मदद की। तो हम अब उस फेज़ से निकल गए कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हम पे कोई रहम किया जाए। हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं, और आपने आज वर्ल्ड स्टेज पे देखा होगा कि पाकिस्तान को क्या इज़्ज़त मिल रही है हमारे मार्का हक के बाद, और पहले भी हमारा कौमी जज्बा वही है। इंटरनेशनल डोनर्स अगर हमारी मदद करते तो हम भी उनको वाइस वर्सा मदद करते हैं। आप जी अब्दुल साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले 2010 और 22 में जो सैलाब आए हमारे सिंध में, उसके बाद बहाली के लिए अरबों रुपए बाहर से आपको मिले, कुछ यहाँ से मिले। वो अरबों रुपए आज तक जो अभी सूरत आ रही है उस स्कूलों की, हॉस्पिटल्स की, वो बाहर नहीं हुई। उसमें वो फंड खर्च कहाँ हुए हैं ये? देखें, जो काम मैं स्पेसिफिक आपको ये अर्ज़ करूँ कि जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का जब तक ताल्लुक़ है, तो डिज़ास्टर के अकर होने के बाद जो इंसानी रिलीफ़ और लाइफ स्टॉक का रिलीफ़ है, ये उसमें अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देते हैं। इस डिपार्टमेंट को एक्सपेंड किया गया है। इसमें रेस्क्यू 1122 में जो वाटर रेस्क्यू, फायर रेस्क्यू और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का जो सेंट्रल कंट्रोल कमांड है, वो इसमें अब एक एक्सटेंशन की गई है। फिर आपने देखी होंगी कि इनकी एम्बुलेंसेस हैं जो पूरे कराची और सिंध में लोगों की खिदमत करी हैं स्टेट ऑफ द आर्ट। जो आप बोल रहे हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, जिसमें हमारे जैसे वर्ल्ड बैंक है, उनने अपना बहुत, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्हें हमें लैंड आउट किया है, इन्वेस्ट किया है, और
सिंध गवर्नमेंट भी उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। अब जैसे हमारे सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज़ है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इतने बड़े घर तो नेपाल में लास्ट बने थे और पाकिस्तान में अब बन रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अपग्रेड हुआ है, हमारे स्कूल्स में ज़रूरत है और हम ये नहीं कह रहे कि सब चीज़ें परफेक्ट हैं, पर जिन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं। और अब आपको पता है कि इतनी बड़ी खुशखबरी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो NFC की कमीशन के लिए कमेटी नोटिफाई की है, इंशाल्लाह ताला उसमें जो सिंध को हिस्सा मिलेगा तो हम वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हेल्थ सेक्टर में लगा के चीज़ों को अपलिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़ा तस्सी के हवाले से एक क्वेश्चन था। मुख्तलिफ वज़रा इस हवाले से ब्रीफिंग भी देते हैं, तर्जमान भी देते हैं। शदीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ एमरजेंसी रेस्क्यू के दौरान ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस वक्त कोई एमरजेंसी की सिचुएशन है नहीं, लेकिन हमारे जो टीम्स हैं वो फुली इफेक्टिव हैं और डिप्लॉयड हैं फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुनो साहब, बड़ी कचहरी कोई मेहरबानी, टीम सही माशाल्लाह, साईं बस सर, थैंक यू मेहरबानी।